So girls, our next topic is any circle through the point of intersection of circle and a straight line. So see, if I have any one circle and this is a straight line and this A and B are the points of intersection of this circle and this straight line. So we can draw many circles passing through this A and B. For example, this is one circle I have drawn. There can be a circle like this. There can be another circle जिसके लिए ये छोटी सी कोड हो और आपका पूरा ऐसे बड़ा सर्कल बन रहा हो. आप खुद ड्रॉ करके देखना कि अगर आप एक सर्कल लेते हो और एक स्ट्रेट लाइन लेते हो तो उनके पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन से पास करने वाले देयर कैन बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of a straight line and a circle. Similarly, next is any circle through the points of intersection of two circles. तो अब अगर हमारे पास two circles हैं ऐसे, these are the point of intersection of two circles and we always know if two circles are intersecting then we have a common chord. So we can find again many circles passing through these points A and B. Some circle will be having this AB as diameter. Some circle can have this chord AB in its major segment. Some circle can have AB as its chord in its minor segment and so on. So from here comes the concept of family of circles. So a set of circles possessing some common property or properties is called a family of circles. So otherwise also what does the term family means? जब हम family की बात करते हैं means there is some commonness among them. For example, in general family से हम समझते हैं with common surname. So यहाँ पे भी family of circles का मतलब होगा if some circles are sharing some common property. So यहाँ पे सबसे पहली जो फैमिली हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज द फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ सर्कल एंड अ स्ट्रेट लाइन. नाउ आपको पता है सर्कल की इक्वेशन को हम s इक्वल टू 0 से डिनोट करते हैं एंड लाइन की इक्वेशन को हम l इक्वल टू 0 से डिनोट कर लेते हैं. सो दिस फैमिली ऑफ सर्कल्स विल बी गिवन बाय s प्लस के l इक्वल टू 0 वेयर k इज अ कांस्टेंट. सो जैसे जैसे ये k कांस्टेंट की डिफरेंट वैल्यूज आएंगी यू विल गेट द डिफरेंट सर्कल्स. So this whole s plus kl equal to 0 will represent family of circles passing through the point of intersection of given circle and straight line. आप सपोज करो आपको सर्कल एंड स्ट्रेट लाइन ना दे के दो सर्कल्स की इक्वेशंस गिवन हो s0 एंड s'0 तो आपको पता है आप कॉमन कोड की इक्वेशन निकाल सकते हो s माइनस s' इक्वल टू 0 करके. सो इन दैट केस ऑल्सो आपकी बुक में वो कई बार s प्लस के s' इक्वल टू 0 यूज़ करते हैं, वो भी ठीक है. अगर आप ये यूज़ करते हो दैट इज़ इक्वली गुड, बट आई ऑलवेज प्रेफर कि आप s प्लस के l इक्वल टू 0 ही यूज़ करो. तो यहाँ पे l की वैल्यू क्या हो जाएगी s माइनस s' इक्वल टू 0. सो बोथ द मेथड्स आर गुड, यू कैन यूज़ एनी वन ऑफ देम. डिफरेंस इज जब आप ये मेथड यूज़ करोगे तो ऑब्वियसली आपकी k की वैल्यूज़ विल बी डिफरेंट फ्रॉम द वन यू हैव यूज्ड in this case, but in both the cases final answer you will get will be the same. So let us see what type of questions come from this topic. So find the equation of circles passing through the intersection of these two circles and center on x-axis. So as I told you they आपकी बुक में they tend to use s plus k s' equal to 0. You can use s plus k l equal to 0 also. So it's totally up to you which method you want to use. तो इन्होंने s प्लस के s' इक्वल टू 0 से किया है, ये मैंने s प्लस के s माइनस s' इक्वल टू 0 से किया. सो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कई बार कुछ अगर कॉमन आ रहा है तो आपने वो कॉमन लेके
कैंसिल नहीं करना। मतलब हम क्या करते हैं, कई बार आप जब क्वेश्चन करते हो तो s माइनस एस डैश इक्वल टू 0 अलग से सॉल्व करके और कुछ कॉमन आ रहा होता है तो उसको उधर ले जाते हो, तो आपने उसको उधर नहीं लेके जाना, वो वैल्यू एज इट इज़ यहाँ पे पुट करनी है। सो आप देख रहे हो अब मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर एक्स वाले टर्म्स को कंबाइन किया, वाई वाले टर्म्स को कंबाइन किया, कॉन्स्टेंट टर्म्स को कंबाइन किया। सो नाउ वी आर गिवन दैट दिस सर्कल हैज़ सेंटर ऑन एक्स एक्सिस। So if center is on x axis, then y coordinate will be 0. So that means 2 minus 8k should be equal to 0. So k is equal to minus 2 by 8. So k is equal to 1 by 4 I am getting. जबकि इन्होंने जब सॉल्व किया है तो इनकी k की वैल्यू आ रही है -5. ओके, सो k की वैल्यू हमारी डिफरेंट आएगी। लेकिन जब मैं ये k की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दूंगी तो लेट अस सी व्हाट आंसर आई एम गेटिंग। सो एज यू कैन सी मेरा आंसर जो आ रहा है वो ये आ रहा है। क्या किया मैंने, k इज इक्वल टू 1 बाई 4 को इसमें सब्सटीट्यूट करके, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 बाई 4x माइनस 23 बाई 4 इक्वल टू 0। एंड दो इनकी k की वैल्यू डिफरेंट आ रही थी, बट जो इनका फाइनल आंसर आ रहा है दैट इज सेम, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस x माइनस 23 इक्वल टू 0। तो अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, आई विल बी गेटिंग 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस x माइनस 23 इज इक्वल टू 0. So hope this is understood to you. So this exercise is very easy now. Find the equation of the circle through the points of intersection of these two circles and passing through the point. तो जब भी आप family of circles निकालते हो, as I told you, s plus kl equal to 0. So k is an unknown. तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको साथ में कोई और एक कंडीशन दी होती है। सो यहाँ पे भी दे आर डूइंग एस प्लस के एस डैश इक्वल टू 0, यू कैन डू बाय दिस मेथड और यू कैन यूज एस प्लस के टाइम्स एस माइनस एस डैश इक्वल टू 0. इट्स टोटली अप टू यू, बोथ आर इक्वली करेक्ट. सो इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स विल बी s plus ks dash equal to 0 or s plus ks minus s dash equal to 0 and passing through the point -1, 1. अब क्योंकि ये फैमिली ऑफ सर्कल्स -1, 1 से पास कर रही है, ये इसको सेटिस्फाई करेगा और k की वैल्यू आपको मिल गई। ये k की वैल्यू आप इसमें जब सब्सटीट्यूट कर दोगे यू विल गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सेकेंड पार्ट में find the equation of circle through the point of intersection of these two circles and having its center on this line. तो इसके लिए आपको पहले इनको सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करके एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा 1 आना चाहिए। तो ये यहाँ पे इन्होंने डिवाइड किया k प्लस 1 से। अब आप इसके सेंटर्स निकाल लो, सेंटर्स आ जाएंगे 3 ओवर k प्लस 1 एंड -2k ओवर k प्लस 1 एंड दीज सेंटर्स लाइज ऑन दिस लाइन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। तो जब आप ये x और y की वैल्यूज़ यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे सेंटर की, तो यू आर गेटिंग k इज इक्वल टू 1. सो ये k इज इक्वल टू 1 अगेन आप सब्सटीट्यूट करोगे एंड यू आर गेटिंग द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल. नेक्स्ट एग्जाम्पल, प्रूव दैट द सर्कल्स टच ईच अदर एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. तो ये अब जो हमने पहले कॉन्सेप्ट किया था उसके क्वेश्चंस आ गए हैं. सो 2 सर्कल्स टच ईच अदर के लिए हमें क्या करना होता है, C1 C2 शुड बी इक्वल टू R1 प्लस R2 और R1 माइनस R2. अगर एक्सटर्नली टच करते हैं तो ये अगर एक्सटर्नली टच करते हैं तो हाँ ये, और अगर एक सर्कल दूसरे के अंदर होता है तो ये. सो देखो इन्होंने क्या किया, C1 और C2 निकाला, देन डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स 5 आ गया, दैट इज C1 C2. R1 कहाँ निकाला हुआ है इन्होंने, ये रहा R1 और ये है R2. सो ये 5 आ गया. सो सिंस C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, सो द 2 सर्कल्स आर टचिंग ईच अदर. फाइंड द इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, वो आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करके निकाल सकते हो. And the point of contact. So point of contact के लिए you will say that point of contact will divide C1 C2 in the ratio 2:3 and उसकी हेल्प से आप point of contact निकाल सकते हो. So this is exercise 3N. So this exercise you have to do yourself. सो इसके साथ ही आई एम स्टार्टिंग विद द न्यू चैप्टर, 4th चैप्टर, कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स. तो आपकी बुक में ये अलग से चैप्टर दिया हुआ है, बट इसमें अलग से चैप्टर देने की ज़रूरत नहीं थी. देखो ये सेम है जो अभी हम पढ़ के आए हैं. एक बार डेफिनेशन देखते हैं. अभी हमने टॉपिक किया
family of circles का, and I was telling you family of circles is which have something in common. So now a system of circles every pair of which has the same radical axis. तो radical axis common हो गया, is called a system of coaxial circles or coaxial family of circles or coaxial circles. So basically वो सारे circles जिनका radical axis same होगा will form coaxial family of circles. ये रिजल्ट याद रखना है आपने, दैट सेंटर्स ऑफ ऑल द सर्कल्स ऑफ कोएक्सियल सिस्टम लाई इन अ स्ट्रेट लाइन एंड परपेंडिकुलर टू देयर कॉमन रेडिकल एक्सिस. सो ये तो आपको पहले भी मैंने बताया था जब हमने रेडिकल एक्सिस वाला कॉन्सेप्ट किया था कि ये आपके पास दो सर्कल्स हैं और ये रेडिकल एक्सिस है, तो ये इनका सेंटर है, ये इसका सेंटर है. सो लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडिकल एक्सिस. तो अब क्योंकि हम कोएक्सियल फैमिली ऑफ सर्कल्स कर रहे हैं तो और भी सर्कल्स होंगे विद द सेम रेडिकल एक्सिस. तो दे आर सेइंग सेंटर ऑफ ऑल द सर्कल्स ऑफ अ कोएक्सियल सिस्टम लाई इन अ स्ट्रेट लाइन एंड दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू देयर कॉमन रेडिकल एक्सिस. उसके बाद नेक्स्ट है आर्टिकल 3 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इस पर हम अभी बाद में आएंगे, आई एम नॉट डिस्कसिंग इट राइट नाउ. नाउ नेक्स्ट इज़ हम चलते हैं एग्जाम्पल पे. आप देखोगे इसके एग्जाम्पल्स बिल्कुल सेम है जैसा अभी हमने क्वेश्चन किया लास्ट में. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल कोएक्सियल विद द सर्कल्स एंड विच पासिस थ्रू -1, -2. सो देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल कोएक्सियल विद द सर्कल्स, इसका मतलब रेडिकल एक्सिस सेम है. सो रेडिकल एक्सिस हम कैसे निकालते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके. ये रेडिकल एक्सिस आ गया. So now coaxial family of circles will be given by S plus KL equal to 0. So S आप इन दोनों में से किसी को भी ले सकते हो, जनरली हम फर्स्ट सर्कल को लेते हैं, प्लस K टाइम्स ये L आ गया. Now this was passing through -1, -2. So -1, -2 से जब आप इसको पास करवा रहे हो तो आपको K की वैल्यू मिल गई. वो K की वैल्यू आप वापस इसमें सब्सटीट्यूट कर दोगे तो यू विल गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल. So I hope this concept of coaxial family of circles is clear to you. So now before doing example number 2, we need to discuss this article. So I am coming back to it now. Important article. They are saying find the equation of system of coaxial circles in the simplest form. तो बहुत सारे circles with the same radical axis and we have to put the equation in the simplest form. So we are making some assumptions for this. So they are saying let x square plus y square plus 2gx plus 2ay plus c equal to 0 represent for different values of g, f and c the members of the coaxial system. तो हमने सपोज कर लिया कि let this equation be representing different members of coaxial system for different values of g, f and c. Now first assumption I am making, because I want to find its equation in the simplest form, so I am saying take the line of centers of these circles as x-axis and their common radical axis as the y-axis. तो क्योंकि हमने अभी एक रिजल्ट किया कि रेडिकल जो ये कोएक्सियल सर्कल्स होते हैं इनके जो सेंटर्स होते हैं वो एक लाइन में होते हैं. तो लेट अस सपोज दैट ऑल दीज सेंटर्स लाई ऑन x-axis and since radical axis is always perpendicular to this line, so we have assumed that their common radical axis is y-axis. Now as the center -3, -f lies on x-axis, so y should be 0, so that means basically f should be 0. So this system reduces to this. ठीक है, क्योंकि इनके सेंटर हमने x एक्सिस पे लिए हैं तो y कोऑर्डिनेट 0 हो गया. नाउ अब मुझे चाहिए रेडिकल एक्सिस. सो हमने रेडिकल एक्सिस को y को रेडिकल एक्सिस सपोज किया है और वैसे हमें रेडिकल एक्सिस निकालने के लिए दो इक्वेशंस चाहिए होती हैं. सो वी हैव टेकन एनी 2 मेंबर्स ऑफ दिस सिस्टम. तो एक हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस c1 इक्वल टू 0. दूसरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस c2 इक्वल टू 0. तो अब रेडिकल एक्सिस आप कैसे निकालोगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके. सो दे हैव सब्ट्रैक्टेड एंड दे हैव फाउंड देयर रेडिकल एक्सिस इज गिवन बाय सब्ट्रैक्ट करके ये इक्वेशन आ जाएगी आपके पास. बट रेडिकल एक्सिस इज वाई एक्सिस और वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल टू 0. तो इसका मतलब ये वाली टर्म तो 0 होनी चाहिए, x शुड बी इक्वल टू 0 नॉट सम कांस्टेंट. सो c1 शुड बी इक्वल टू c2 एंड एट द सेम टाइम
यहाँ पे इन्होंने लिखा नहीं है, बट G1 शुड नॉट बी इक्वल टू G2, समझ रहे हो? क्योंकि अगर G1 G2 के इक्वल हो गया फिर तो x का कोफिशिएंट ही 0 हो जाएगा, वो 0 नहीं हो सकता. So since radical axis is y axis, that is x is equal to 0, therefore C1 minus C2 should be 0, therefore C1 is equal to C2 is equal to C, say. That is the constant term equation in the equations of all the circles of coaxial system remains the same. Hence x square plus y square plus 2gx plus c equal to 0, where c remains a constant and g is a parameter, means g varies, represents a coaxial system of circles. So this equation you have to remember. So this is the equation of the coaxial system of circles in the simplest form, that is x square plus y square plus 2gx plus c is equal to 0. ओके, सो नेक्स्ट इस आर्टिकल में यही बताया कि आपने एग्जांपल्स कैसे करने हैं, वो मैंने आपको सीधा एग्जांपल डिस्कस करके बता दिया. आप अपने लिए उसको पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो. नाउ लेट अस कम टू एग्जांपल नंबर 2. सो एग्जांपल 2 में दे आर सेइंग फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच इज कोएक्सियल विद द सर्कल्स. देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 11x प्लस 4 इक्वल टू 0. तो यहाँ पे अब देखो 3 आपको कोएक्सियल सर्कल्स दिए हैं. अभी हमने देखा सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस, देखो इन सब में जो c है वो 0 है और g वेरी कर रहा है. इसका मतलब let equation of any circle coaxial with these three circles be x square plus y square plus 2gx plus 4 equal to 0, because constant term remains the same and g is the only variable and touches the line. Now this coaxial circle is touching this line, so perpendicular distance from its center should be equal to its radius. So इसका center g comma 0, radius is g square minus 4. So perpendicular distance g comma 0 से आप फाइंड करके इक्वल टू रेडियस कर रहे हो, तो यू आर गेटिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन g एंड हेंस यू आर गेटिंग 2 वैल्यूज ऑफ g. सो ये 2 वैल्यूज ऑफ g जब आप सब्सटीट्यूट कर दोगे, सो यू विल गेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल्स विच इज कोएक्सियल विद द गिवन सर्कल्स एंड टचिंग द गिवन लाइन. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट एग्जाम्पल. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल आपने नहीं करना है, इसको छोड़ दो. नेक्स्ट है आपकी एक्सरसाइज 4A. 4A के ये तीनों क्वेश्चंस आप करोगे एंड 4A के ये जो क्वेश्चंस हैं 4th 5th 6th इनको आप छोड़ सकते हो, ये आपको नहीं करने की ज़रूरत. ओके, एंड सो लेट अस कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द टाइप्स ऑफ कोएक्सियल सर्कल्स and the limiting points. So first of all let us discuss what is the limiting point of a coaxial system of circles. So the centers of the point circles. Point circles क्या होते हैं? Circles with their radii is 0 belonging to a coaxial system are called the limiting points of the coaxial system. तो coaxial system of circles में हमने देखा था वो सारे circles आते हैं with the same radical axis. So out of those circles which are point circles, that is their radii is 0, becomes the limiting points of the coaxial system. तो ये find करना बहुत easy है. जैसे आप coaxial system of circles अभी तक निकालते आए हो, s plus k l equal to 0 करोगे, यहाँ पे आपके पास जो सर्कल कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स आता है उसमें से आपने वो वाला सर्कल फाइंड करना है जिसका रेडियस 0 है. तो जैसे ही आप रेडियस 0 पुट करते हो यू गेट द लिमिटिंग पॉइंट्स. सो बिफोर डिस्कसिंग फर्दर लेट अस डिस्कस एन एग्जांपल रिलेटेड टू दिस. फाइंड द लिमिटिंग पॉइंट्स ऑफ द कोएक्सियल सिस्टम डिटर्मिन्ड बाय द सर्कल्स. सो दीज आर द 2 सर्कल्स. You will find their radical axis by subtracting the 2 equations. Then coaxial system becomes s plus kl equal to 0. s इनमें से कुछ भी हो सकता है, l ये होता है. उसके बाद आप क्या करोगे? You have to find the limiting point, that is center of the circle with radii 0. So इसका center निकाला मैंने, यहाँ आ गया -2k plus 3 and -k plus 3. एंड देन इसका रेडियस निकाला g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c करके. नाउ रेडियस शुड बी इक्वल टू 0
सो जब आप रेडियस को 0 करोगे, यहाँ से आपके पास क्वाड्रेटिक इन k बन गई है इक्वेशन, गिविंग यू 2 वैल्यूज़ ऑफ k, दैट इज़ 2 and 7/5. नाउ ये k की वैल्यूज़ जब आप सेंटर में सब्सटीट्यूट करोगे तो यू विल गेट पॉइंट सर्कल्स, दैट इज सर्कल्स विद रेडियाई 0. सो k को एक बार 2 पुट किया और एक बार 7/5 पुट करके you are getting for these values of k, coordinates of center are this, therefore these are the limiting points. So I hope this concept is clear to you. So next, find the equation to the circle which belongs to the coaxial system of which the limiting points are and which passes through the origin. अब क्योंकि आपको limiting points दिए हुए हैं तो limiting points are the point circles with radii 0. So we can find equation of the circle, point circle. ये सेंटर है, so x minus h plus y minus k equal to radius is 0. ये आपको एक सर्कल मिल गया, ऐसे ही ये दूसरा पॉइंट सर्कल मिल गया. Now equation of radical axis will be s minus s dash equal to 0. So इन्होंने s plus k s dash equal to 0 किया, ये भी कर सकते हो. I always press over to use this, वो भी कर सकते हो. सो ये जो आपको मिला है इसके बारे में उन्होंने क्या बोला है, दैट इट इज़ पासिंग थ्रू द ओरिजिन. तो जब आप इसको ओरिजिन से पास करवा दोगे तो यू विल बी गेटिंग वैल्यू ऑफ k. सो k की वैल्यू आ रही है -12, वो k की वैल्यू -12 आप इसमें सब्सटीट्यूट करोगे एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच बिलोंग्स टू द कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स विद लिमिटिंग पॉइंट्स 1, -1 and 2, 0. Next example, the point 2, 1 is a limiting point of a coaxial system of circles of which this is a member. Find the equation of the radical axis and the coordinates of the other limiting point. So क्योंकि 2, 1 limiting point है, that means it is a point circle with radius 0. So we can find its equation, x minus 2 whole square plus y minus 1 whole square is equal to 0 करके. So एक सर्कल की इक्वेशन हमें गिवन है, दूसरा लिमिटिंग पॉइंट है तो उसकी इक्वेशन हमने फाइंड कर ली, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके वी हैव गॉट द रेडिकल एक्सिस. सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द, लिखा हुआ है रेडिकल एक्सिस. नाउ इक्वेशन ऑफ एनी सर्कल कोएक्सियल विद दीज सर्कल्स विल बी s plus k l इक्वल टू 0. ये l होता है आपका, ऐसा आप कोई भी ले सकते हो. नाउ सिंस यू हैव टू फाइंड द अदर लिमिटिंग पॉइंट, तो इसके सेंटर निकाला, इसका रेडियस निकाला, रेडियस को 0 किया, 0 करने से क्वाड्रेटिक इन k, hence I am getting 2 values of k. ये k की वैल्यूज़ आप टर्न बाय टर्न सेंटर में जब पुट करोगे, सो यू आर गेटिंग दीज 2 लिमिटिंग पॉइंट्स, जिसमें से 2, 1 वॉज ऑलरेडी गिवन टू अस, दैट मीन्स द अदर लिमिटिंग पॉइंट इज -5, -6. I hope this is clear to you. Next example, show that this represents a non-intersecting system of coaxial circles and that its limiting points are plus minus 3, 0. So ये जो एग्ज़ाम्पल है इसको करने से पहले we need to discuss this, जो हमने अभी छोड़ दिया था पीछे, इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं. टाइप्स ऑफ कोएक्सियल सर्कल्स. सो ये क्या है बेसिकली, दे आर सेइंग, अभी हमने देखा दैट द इक्वेशन ऑफ कोएक्सियल सर्कल्स इन सिंपलेस्ट फॉर्म इज गिवन बाय x² + y² + 2gx + c = 0. सो इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है. हमने लिया x² + y² + 2gx + c = 0. सो ये जो हमारे पास है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कोएक्सियल फैमिली ऑफ सर्कल्स. दीज आर द सर्कल्स विच आर हैविंग सेम रेडिकल एक्सिस. सो व्हाट आई वांट टू डू इज़, क्योंकि मैंने ये सपोज किया था कि इनके सेंटर्स x एक्सिस पे लाई करते हैं एंड y एक्सिस इज इट्स रेडिकल एक्सिस एंड y एक्सिस की इक्वेशन इज गिवन बाय x इज इक्वल टू 0. सो आई एम ट्राइंग टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द रेडिकल एक्सिस विद दिस सिस्टम. तो जब आप इसमें x को 0 पुट करोगे, यू आर गेटिंग y² + c = 0. दैट मीन्स y² इज इक्वल टू -c. दैट मीन्स y इज इक्वल टू +- -c. नाउ व्हाट हैपन्स, अब देखो c पे डिपेंड करता है. जब आपने ये इक्वेशन ऑफ कोएक्सियल फैमिली ऑफ सर्कल्स ली है, सो c इज़ अ कांस्टेंट एंड g इज़ अ पैरामीटर. सो क्योंकि c कांस्टेंट है तो अब देखो, अगर हमारे पास c पॉजिटिव हुआ, अगर c की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये जो y आ रहा है मेरे पास इज़ इक्वल टू, इसकी इमेजनरी वैल्यूज़ आएंगी. अगर y की इमेजनरी वैल्यूज़ आ रही हैं, इसका मतलब
this circle, system of circles, is not intersecting with the radical axis. So that means your coaxial system of circles is of non-intersecting type. While if C is negative, अगर C नेगेटिव है तो ओवरऑल ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगी. पॉजिटिव हो जाएगी इसका मतलब y इज हैविंग रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यूज़. सो इसका मतलब ये होता है कि आपके जो सर्कल्स हैं वो इस तरह के बन रहे हैं, क्योंकि y क्या है, रेडिकल एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. अब ये रेडिकल एक्सिस है ना, सो यू आर गेटिंग रियल एंड डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ y. इसका मतलब रेडिकल एक्सिस इज इंटरसेक्टिंग विद द सर्कल एट रियल एंड डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. सो दैट मीन्स आपके जो सर्कल्स हैं वो इंटरसेक्टिंग टाइप के हैं. एंड इफ c इज इक्वल टू 0 तो इसका मतलब y इज इक्वल टू 0. इसका मतलब आपके जो सर्कल्स हैं वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रहे हैं. सो यही सारा कुछ इसमें इन्होंने बताया है. आपने जो क्रक्स याद रखना है वो ये कि अगर c नेगेटिव होगा तो सर्कल्स आर ऑफ इंटरसेक्टिंग टाइप, अगर c 0 होगा तो सर्कल्स आर ऑफ टचिंग टाइप, एंड इफ c इज़ पॉजिटिव देन द सर्कल्स आर नॉन इंटरसेक्टिंग. इसी के बेसिस पे फिर आ जाता है नेचर ऑफ द लिमिटिंग पॉइंट्स. तो आपके जो लिमिटिंग पॉइंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ नॉन इंटरसेक्टिंग टाइप में एग्जिस्ट करते हैं. सो ये देखो, ये बोल रहे हैं, ये इन्होंने यहाँ पे डिराइव करके दिखाया है. तो हमारे जो, अगर हमें कोएक्सियल फैमिली ऑफ सर्कल्स गिवन है तो इसका रेडियस ऑफ सर्कल ये होता है √g²-c. रेडियस को 0 पुट करते हैं तो g इज इक्वल टू ±√c आ गया. अब देखो, अगर c पॉजिटिव हुआ तो मुझे लिमिटिंग पॉइंट्स मिल जाएंगे √c,0 एंड -√c,0. अगर c 0 हुआ तो लिमिटिंग पॉइंट्स क्या होंगे, 0,0, एक ही लिमिटिंग पॉइंट. और अगर c नेगेटिव हुआ तो c नेगेटिव होने पे लिमिटिंग पॉइंट्स डज नॉट एग्जिस्ट. सो यही यहाँ पे इन्होंने बोला है, लिमिटिंग पॉइंट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट इफ c इज पॉजिटिव. लिमिटिंग पॉइंट्स आर real and coincident if c is 0, that is circles are of touching type. Limiting points are imaginary if c is negative, that is the circles are of intersecting type. So लेकिन ये तभी है जब हम डिस्कस करते हैं this form of equation. जनरल इक्वेशन के लिए ये सारा रिजल्ट ट्रू नहीं है. ये सारा रिजल्ट किसके लिए है, ओनली फॉर दिस x² + y² + 2gx + c = 0 where g is a parameter and c is a constant. सो इसी के बेसिस पे उन्होंने ये 4th एग्जाम्पल किया है. दे आर सेइंग शो दैट दिस फैमिली, दिस रिप्रेजेंट्स अ नॉन इंटरसेक्टिंग सिस्टम ऑफ कोएक्सियल सर्कल्स. तो ये सब करने की जगह आप सीधा बोल सकते हो दैट सेंटर ऑफ दिस सर्कल लाइज ऑन द x एक्सिस. सो radical axis is y axis. So finding the intersection with x is equal to 0. तो x इक्वल टू 0 के साथ जब कर रहे हैं तो इमेजिनरी पॉइंट्स आ रहे हैं. और अभी हमने डायरेक्ट रिजल्ट ही किया, क्योंकि c पॉजिटिव है तो दिस सिस्टम इज ऑफ नॉन इंटरसेक्टिंग टाइप. एंड शो दैट इट्स लिमिटिंग पॉइंट्स आर ±3,0. सो लिमिटिंग पॉइंट्स के लिए तो हम वही करेंगे कि ये हमें कोएक्सियल सिस्टम ऑफ सर्कल्स गिवन था. ये कहाँ से आया है इनका, ये यहाँ से आया है, s + ks' = 0 करके ये आ गया. अब इसका हमारे पास जो सेंटर है वो 0 होना चाहिए, सॉरी सेंटर, और रेडियस 0 होना चाहिए. रेडियस 0 करके k की वैल्यू 8 और 2/7 आ गई है. ये k की वैल्यू जब हम सेंटर्स में सब्सटीट्यूट करते हैं तो वी आर गेटिंग लिमिटिंग पॉइंट्स एज ±3,0. सो दिस इज़ योर एक्सरसाइज 4b. सो ये एक्सरसाइज आपने ट्राई करनी है एंड दिस एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इस एक्सरसाइज में से आपको पेपर में एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा. इसके बाद ये थोड़ा सा रह गया हमारा प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करना. सो ये सिर्फ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग है, एक बार पढ़ लेते हैं इसको. कॉन्जुगेट सिस्टम ऑफ कोएक्सियल सर्कल्स क्या होता है, इन विच ईच the two systems of coaxial circles such that each member of one system cuts orthogonally every member of the second system are called conjugate system of coaxial circles. Properties: every member of one system cuts orthogonally every member of the other. The line of center of one is the radical axis of the other. Limiting points of one system are if limiting points of one system are real, then those of the second system are imaginary.
All circles of one system pass through the limiting points of the other system. If one system is of an intersecting type, then the other must be of non-intersecting type. The length of tangent from the center of any circle of one system to circle of other system is equal to the radius of the first system. So अगर आपको नहीं भी समझ आया है, नो प्रॉब्लम, ये आपके सिलेबस में है भी नहीं, जस्ट मैंने एक रीडिंग दी है इसको. इफ़ यू वांट टू लीव इट, यू कैन लीव इट. सो 4B एक्सरसाइज आपने करनी है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. विद दिस योर चैप्टर ऑफ सर्कल्स इज ओवर.